Shall we start? Yes? Okay. Now, as I told you that the PDF of textbook which I have sent you, it does not have page number 18 in it. पता नहीं because of any of the reasons, page 18 has been skipped out from that. So right now I am sharing page 18 separately to you. Okay, so if you want you can take the screenshot of that page. आप अपने फोन में जब PDF ओपन करोगे which I have sent you in the classroom. Okay, so Google Classroom, the PDF which I have sent of textbook will not be having page 18. I am sharing separately this page, so you would please take the screenshot. Am I very clear, students? समझ में आ गया? Yes or no? Okay, now here comes your page 18. Just a minute. Can you see the page? Can you all see the page, students? Okay, are you all ready with your classwork and your ready with the classwork? Yes? Okay, now we had already started the new chapter in previous lecture. What is the name of the chapter? Yes, it is the Rajput age. And Rajput age is that age, it is that period when most of the kingdoms of India were ruled by Rajputs. So, when these Rajputs were ruling over India, it is known as Rajput age. So, before the Rajputs, who was ruling over India? Yes, very good. Harshvardhan and Pulkeshi too. In which part of India was Harshvardhan ruling? North. North India, very good. And Pulkeshi too in South India. Okay. Now they were so powerful kings that Harshvardhan could control whole of North India, Pulkeshi too could control whole of South India. But then after their death, their successors was not so powerful that they could control whole of the very big two states, right? And as a result their kingdom disintegrated, their kingdom divided into smaller other kingdoms. And who became the kings of these small kingdoms? The feudal lords or the जमींदार. अभी आपको पता है कि जमींदार कौन थे और उनका क्या ड्यूटी था, वो याद है ना, हमने डिटेल में किया था, याद आ रहा है? Yes or no? Do you remember the zamindars, the feudal lords? What did they do? Okay. So as the yes, वो हमने ABCD वाला एग्जाम्पल लिया था वो, राइट? सो किंग डाइड, ईच एंड एवरी जमींदार जिनके पास जो एरिया था वो एरिया के वो खुद किंग बन गए, right? And this is how the India was divided into small kingdoms, and most of these kingdoms were ruled by the Rajputs. For the sake of convenience, again historians have divided all the Rajput kingdoms into two parts: the Rajput kingdoms of North India and the Rajput kingdoms of the Rajput South India. Okay, the first page was already done. Today we are starting with the next page. I repeat, जो लेट आए हैं उसके लिए खास, मैंने जो आपको क्लासरूम में टेक्स्ट बुक की PDF सेंड की है, इन दैट दिस पेज 18 इज मिसिंग. ये वाला पेज उसमें नहीं है. टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ऑल ऑफ यू. Okay, things to know. There is an information given to us.
हु इज द फ्यूडल लॉर्ड और लैंडलॉर्ड? फ्यूडल लॉर्ड लैंडलॉर्ड कौन थे? Who is a feudal lord or landlord? The vast empire was divided into different provinces. Provinces meaning area. You can see the meaning is written here itself. So the same meaning you will write in your class workbook. The next meaning, I think number 5 होगा ये. Write this. Provinces meaning areas. Provinces means areas. Because the kingdom was very big, it was divided into small areas. जिसको बोलते थे provinces. Have you written the meaning, all of you? Okay. So the vast empire was divided into different provinces, that is 3 parts. The person who collected the revenue of a particular province was called feudal lord or landlord, that is samant. इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड और लैंडलॉर्ड. उस टाइम की लैंग्वेज में हिंदी में बोलते थे सामंत. ये सामंत वर्ड आपको याद रखना है. ओके. द लैंडलॉर्ड गिव सम पोर्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द किंग. रेवेन्यू मीनिंग इनकम. हमें पता है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. ओके. सो राइट दिस मीनिंग. दिस विल बी योर नेक्स्ट मीनिंग. रेवेन्यू मीनिंग इनकम. दिस विल बी द 6th मीनिंग. फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे ये सामंत, फिर थोड़ा पोर्शन अपने पास रखेंगे, बाकी का किंग को दे देंगे. और उनके पास जो पोर्शन है दैट विल बी देयर सैलरी. यस. सॉरी. Okay, so the landlord gave some portion of income, that is land revenue, to the king. He kept the rest with him, out of which he maintained an army. He sent his army whenever the king needed the help. In times, these landlords became powerful and feudalism, that is Saman Shahi, came into existence. शायद ये भी मैंने आपको बताया था that the feudal lords they वेरी गुड इनकम. उनके पास इनकम बहुत अच्छी थी. सो वट एवर द एक्स्ट्रा सैलरी वॉज लेफ्ट विद दैट देम, दे यूज टू train the army, they used to have soldiers, they used to purchase horses, weapons, and get their own army. I think I told this in the previous lecture. Yes or no? Yes, right? And whenever the king required the army, they used to lend the army to the king, and उसके बदले भी उनको इनकम मिलती थी. Right? So this is known as सामंत शाही और फ्यूडलिज्म, जिसमें किंग के ऑफिसर खुद देवर वेरी पावरफुल. और इसीलिए जब किंग कोई नया किंग लेस पावरफुल होता है तो ये लोग अपने आप से खुद किंग बन जाते हैं. ओके. सो सिमिलरली दिस फ्यूडलिज्म या तो सामंत शाही, जिसमें फ्यूडल लॉर्ड्स खुद किंग बन गए और उन्होंने अपनी खुद की किंगडम, खुद की डायनेस्टी स्टार्ट कर दी. एंड अकॉर्डिंगली देयर वर सो मेनी सच डायनेस्टीज इन नॉर्थ इंडिया एंड इन साउथ इंडिया. Now in the next paragraph we have been given the names of these feudal lords or the dynasties who ruled over north and south. राइट. तो ऐसे बहुत सारे, सपोज ये हमारा इंडिया था, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स अपने अपने एरिया के किंग बन गए और उन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी. और हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, राजपूत डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड राजपूत डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया. तो नेक्स्ट पैराग्राफ ये जो डायनेस्टीज है उसके नाम दिए हैं कि which dynasties ruled over North India and which dynasties ruled over South India. Do you understand what is given in the next paragraph? Okay, let's read the names. Many dynasties came into existence. The main dynasties ruling North India, North को में कौन कौन सी थी? They were Gurjar, Pratihar, Pal, Chalukya, Parmar and Chauhan dynasties. While among those in South India were Pallavas, Rashtrakutas, Kalyanis, Chalukyas, Cher, Pandya and Chola dynasty. North के नाम दिए हैं, South के नाम दिए. Now you can see that here the title is given North India. तो नॉर्थ इंडिया वाली जितनी भी डायनेस्टीज है दैट वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन, एंड इन द नेक्स्ट पेज वी विल लर्न रिगार्डिंग द डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया.
ओके, तो नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से किंग्स आए, उसमें से विच वर मोर पावरफुल, दे फॉट विथ विच अदर किंगडम्स, एंड व्हाट अदर स्पेशलिटीज वर देयर ऑफ द किंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न. Okay, read the next line. The kingdoms of early medieval period were divided into two parts, North India and South India. Now there is one word given, medieval. Again write the next meaning. ये आपका मीनिंग होगा medieval means middle. अभी इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द मीनिंग. Medieval means middle. Okay. Now you might be knowing that history, it is a very long period. कितने सालों से हिस्ट्री चल रही है आपको पता है? It is thousands and millions of years old. पास्ट जब हम देखे प्रिमिटिव मैन थे, पता है, जंगल में रहते थे, उनके कपड़े जो है वो लीव्स के बने थे, फॉरेस्ट में एनिमल्स को मार के खा जाते थे. आई थिंक यू लर्नड इन 6th स्टैंडर्ड प्रिमिटिव मैन एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना. तो हिस्ट्री इज वेरी ओल्ड. अब इतनी लंबी हिस्ट्री याद रखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट. तो व्हाट द हिस्टोरियंस डिड, they divided history into three parts: the ancient history, the middle or the medieval history, ये वाला medieval history, and the modern history. ठीक है. History was divided into how many parts? Three parts: ancient, medieval and modern. तो we are just now interested in this part. ठीक है. हम लोग अभी मेडिवल हिस्ट्री में ज्यादा फोकस करेंगे. अब मेडिवल हिस्ट्री भी बहुत बड़ी है, हजारों साल. तो अगेन हिस्टोरियंस ने क्या किया, दे सब डिवाइडेड द मेडिवल हिस्ट्री अगेन इनटू टू पार्ट्स, द अर्ली मेडिवल पीरियड एंड द लेट मेडिवल पीरियड. देखो यहाँ ऊपर टाइटल में क्या लिखा है, अर्ली मेडिवल, है ना. तो अर्ली मेडिवल और लेट मेडिवल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्ली एंड लेट? तो अभी हमें पता है कि पहले हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू रूलिंग ओवर इंडिया, उसके बाद राजपूत दे वर रूलिंग ओवर इंडिया. ये तो हमें पता है ना, राइट. तो ये जो मेडिवियल हिस्ट्री है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अर्ली मेडिवियल एंड लेट मेडिवियल. अर्ली मेडिवियल में द इंडियन लोकल किंग्स रूल्ड ओवर इंडिया, राइट. इंडिया के ही किंग जो पहले से यहीं पर रहते थे, नेटिव इंडियन किंग्स, दे वर रूलिंग ओवर इंडिया. और फिर क्या, धीरे धीरे फॉरेनर्स स्टार्टेड कमिंग इन इंडिया. अफगान्स आए, टर्किश आए, मंगोलियंस आए, अरब्स आए, और फिर बाद में ब्रिटिशर्स भी आए. वो भी आपको पता है ना, राइट. तो slowly what happened, that the outsiders came in India. बाहर के किंग्स और इंडियन किंग्स के बीच में लड़ाई हुई, और बाहर वाले किंग्स जो है वो इंडिया पर रूल करने लगे. तो द पीरियड व्हेन फॉरेनर्स स्टार्टेड कमिंग एंड रूलिंग ओवर इंडिया इज नोन एज लेट मेडिवियल पीरियड. और जब हमारे खुद के नेटिव किंग्स रूल करते थे, दैट इज नोन एज अर्ली मेडिवियल पीरियड. समझ में आ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू पीरियड्स, ऑल ऑफ यू? ओके. सो हम लोग क्या याद रखेंगे, दैट हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: एंशिएंट हिस्ट्री, medieval history and modern history. Again, medieval history is divided into early medieval and late medieval. When the Indian kings were ruling, it is early medieval, and when the foreigners came and started ruling over India, it is known as late medieval. अभी हम कौन सा पीरियड लर्न कर रहे हैं? अर्ली मेडिवियल, जहां पर इंडिया के ही राजपूत किंग्स दे आर रूलिंग ओवर इंडिया. ठीक है. और यही हमको दिया है, देखो, कैन यू सी दिस अर्ली मेडिवियल. तो हम वो पीरियड लर्न करेंगे इस चैप्टर में. एम आई वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है ना सबको? ओके. सो लेट अस रीड द सेंटेंस. The kingdoms of early medieval period were divided into two parts, North India and South India. अब North India में कौन कौन से डायनेस्टीज थे, that we are going to learn now.
ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यहाँ पर और एक मीनिंग है जो आपको लिखना है। आफ्टर द डेथ ऑफ Hardhan, many kings ascended the throne. What is the meaning of ascended? Came to. Write it again. चलो लिखो। ascended meaning came to. हर्षवर्धन के बाद किंग्स तो बहुत सारा है, but none of them were so powerful. Okay, have you written the meaning? So, after the death of Harsh, many kings ascended the throne of Kannauj. Among them, Yashovarma is considered as a powerful ruler. You can see the picture of Yashovarma given to you. Can you see this, Yashovarma? Yes, so he was very powerful. Yashovarma is considered as a powerful ruler. After him, the Pratihar dynasty established its rule in Kannauj. अब डायनेस्टीज आ रही है वन बाय वन, पर प्रतिहार, पाल, चालुक्य, परमार। क्यों? क्योंकि मेन किंग दे वर वेरी वीक, सो नाउ राजपूत आर स्लोली फ्यूडलिज्म में से किंगडम में आ रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, तो प्रतिहार डायनेस्टी एस्टेब्लिश रूल इन कन्नौज। दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेजन। इन्वेजन मीनिंग अटैक। See that there is one more meaning which you have to write. Invasions meaning attacks. Now Arab people, आपको पता है अरब्स कौन है? जो सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्री में से आते हैं। ईरान, इराक, कुवैत, ये सब नाम सुने हैं आपने कि नहीं सुने? नहीं ना, तो वो कंट्री जहाँ पर बहुत सारा पेट्रोल मिलता है उनको हम बोलते हैं अरब कंट्रीज। तो अरब कंट्रीज स्टार्टेड इन्वेडिंग, स्टार्टेड मेकिंग अटैक्स ओवर इंडिया, बट द प्रतिहार रूलर्स दे डिड नॉट अलाउ, उनको इंडिया में घुसने नहीं दिया, राइट? बिकॉज द प्रतिहार्स वर वेरी पावरफुल। ओके, लेट्स रीड फर्दर। So, the Pratihar dynasty established its rule in Kannauj. They protected India from invasions. Mihir Bhoj, who was also known as Bhoj, was the most powerful ruler of this dynasty. This dynasty means which dynasty? Pratihar, Pratihar dynasty. You can see the picture of Mihir Bhoj also given to you. Can you see? अगर आपने हिंदी में एक प्रोवर्ब सुना है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, सुना है? वो एक है राजा भोज की, वो कभी हम टाइम मिलेंगे ना तो मैं आपको सुनाऊंगी। वो राजा भोज जो बहुत ही फेमस थे। ओके, ही वाज अ वेरी फेमस किंग ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। यस, प्रतिहार। So, Mihir Bhoj, or who was also known as King Bhoj, was the most powerful ruler of this dynasty. He fought many battles with the Rashtrakutas during his reign. Reign मतलब वो बारिश वाला रेन नहीं, it's R-E-I-G and rain. See this. And either meaning reign meaning rule. अब मिहिर भोज जो है वो नॉर्थ में रूल करते थे, एंड राष्ट्रकूटास दे वर रूलिंग ओवर साउथ इंडिया। तो मिहिर भोज के बहुत सारे बैटल्स साउथ इंडिया के राष्ट्रकूटास के साथ हुए थे। एंड मिहिर भोज या तो किंग भोज, ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन डिफीटिंग द राष्ट्रकूटास। लेकिन ये राष्ट्रकूटास हम कब लर्न करेंगे? जब हम साउथ इंडिया में जाएंगे तब। अभी हम नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है, समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। और मीनिंग लिख लिया? रेन मीनिंग रूल। ओके, सो he fought many battles with Rashtrakutas during his reign. We shall learn about Rashtrakutas later when we go to South India. ठीक है, तो अभी हमने बात किया प्रतिहार डायनेस्टी का। अब और एक डायनेस्टी थी, हमें तो पता है कि ये नॉर्थ इंडिया है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स है ना? तो अभी हमने लर्न किया
प्रतिहार। अभी नेक्स्ट हम लर्न करने वाले एक और डायनेस्टी जो है परमार डायनेस्टी। ओके, चलो। द परमार डायनेस्टी रूल्ड मालवा। मालवा जो कि अभी करंट मध्य प्रदेश में है। उज्जैन एंड धारा नगरी वर द टू मेन सिटीज ऑफ मालवा। मालवा नाम का जो किंगडम था उसमें दो बड़ी बड़ी सिटीज थी, उज्जैन एंड धार नगरी। उज्जैन जो कि आज भी है मध्य प्रदेश में, शायद आपको पता होगा। उज्जैन नाम सुना? वहां पर बड़ा सा एक शंकर भगवान का मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर। ओके, हाँ, यस। धार नगरी इज नोन एज धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट। आज अगर मध्य प्रदेश में जाओ तो धार किंगडम नहीं है, लेकिन धार डिस्ट्रिक्ट है। ओके, किंग मुंज एंड किंग भोज ऑफ परमार डायनेस्टी वर नॉट ओनली गुड रूलर्स बट ऑल्सो गुड पोएट्स। राजा तो थे ही बट पोएट भी थे। दे यूज्ड टू राइट बुक्स ऑल्सो। दे गिव पेट्रोनेज टू द स्कॉलर्स इन देयर कोर्स। पेट्रोनेज मीनिंग सपोर्ट। देखो यहाँ पर एक्चुअली स्पेलिंग पूरा नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है? यस, दिस विल बी योर नेक्स्ट वर्ड। पेट्रोनेज मीनिंग सपोर्ट। राइट द नेक्स्ट मीनिंग। तो किंग भोज एंड किंग मुंज दे themselves used to like poetries very much। तो उनके किंगडम के जो भी पोएट्स थे, जो भी राइटर्स थे, उनको हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे। दे यूज्ड टू गिव पेट्रोनेज। हैव यू रिटन द मीनिंग ऑल ऑफ यू? ओके, लेट्स सी फर्दर। They gave patronage to the scholars of their courts। राजा भोज और किंग भोज में धार नगरी द सेंटर ऑफ स्टडीज, जिसको बोलते थे विद्या नगरी। वहां पर बहुत सारी विद्या मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, स्कूल्स थी। एंड एस्टैब्लिश अ यूनिवर्सिटी दैट इज विद्यापीठ फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर। यूनिवर्सिटी जिसको हिंदी में बोलते विद्यापीठ। यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज? व्हाट इज इट? स्कूल किसको बोलते, कॉलेज किसको बोलते? Yes. In the school, you get basic education, and in the universities, you get higher education. So, if anybody want to get higher education, especially in Sanskrit, then there was a very big university established over there by the Parma kings. I hope I am clear, all of you. Okay. Many architectural monuments were built during this time. Now, I think you know what are monuments. You tell me the meaning. Yes, monuments meaning buildings. So at that time, many buildings were built, and that too very beautiful, very artistic. The Parmars fought many battles with the Chalukyas of the south. Again, north south वाला आ गया, ठीक है? नॉर्थ में थे परमार और साउथ में थे चालुक्यास। तो ये दोनों के बीच में भी बहुत सारी बैटल्स हुआ करती थी। राइट, अब बैटल्स में जनरली क्या होता था कि ये तो हमें पता ही है कि ये पूरी जो किंगडम है उसमें छोटे छोटे डायनेस्टीज रूल करते थे। नाउ व्हाट हैपेंड, कभी कभी क्या होता था कि दिस किंग अटैक्ड ओवर दिस किंग। अब दो किंग्स के बीच में बैटल होती है तो वन किंग विल विन, द अदर विल लूज। राइट, तो अगर ये किंग विन होता है और ये किंग लूज होता है, ये किंग हार जाता है, तो क्या होगा कि ये विनर किंग ये पूरा एरिया ले लेगा एंड नाउ ही विल बी द किंग ऑफ होल ऑफ दिस एरिया। और ये वाला किंग तो हार गया। समझ में आ रहा है ना? जो किंग हार जाएगा उसका किंगडम जीतने वाला किंग खुद ले लेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यस और नो? यस। तो ऐसे इंटरनल फाइटिंग्स बहुत होते थे। अगर ये हम इसको सपोज हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं, ये हो गया किंग ए, ये हो गया बी, ये सी, डी, ई, एफ और जी। ओके, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी किंग्स है, दे यूज्ड टू इंटरनली फाइट वेरी मच। कोई भी किंग के बीच में यूनिटी नहीं थी, ठीक है? और इसीलिए फॉरेनर्स आके हमारे ऊपर रूल करने लगे। तो हर्ड दैट स्टोरी ऑफ टू कैट्स एंड वन मंकी, अ पीस ऑफ रोटी, याद है ना?
ठीक है। तो ऑल द किंग्स, सभी किंग्स को अपना अपना किंगडम एक्सपांड करना था, अपना अपना एरिया इंक्रीज करना था. सो दे कंटिन्यूअसली फॉट ईच अदर, and this happened regularly between the kingdoms of North India, the kingdoms of South India, and internally also. Right? See the last sentence. The Parmars fought many battles with the Chalukyas of the south. After the death of Raja Bhoj, the kingdom of Maratha weakened. Now you know what is weakened? धीरे धीरे वीक हो गया, और परमार डायनेस्टी एंडेड, और उसके बाद आ गई दूसरी डायनेस्टी. वो दूसरी डायनेस्टी कौन कौन सी थी वो हम लर्न करेंगे नेक्स्ट पेज में. ओके. यस. हाँ बोलो, व्हाट इज योर डाउट? Okay, so today in this page we specially learned about the dynasties of North India. उसमें भी प्रतिहारन परमार. अभी तो और भी बहुत सारे डायनेस्टीज है, जैसे पाल डायनेस्टी है, फिर चौहान्स है, जहामनाज है, फिर बहुत सारी तोमर्स है. तो देर आर स्टिल मोर डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, बट वी डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम. So in next page we are still going to continue with North India itself, the kingdoms of North India, but tomorrow. If today you have any doubts, आज के lecture में कोई queries, कोई questions है तो आप पूछ सकते हो. Anybody? Any doubts? Any doubts, beta? No doubts. Shall we end the lecture then? No reply. Shall we end the lecture? Okay, bye bye all of you. Have a nice day.